Hello and welcome to Artha Studio. Artha Studio, a vision of eminent artist Sri Sunirmal Chatterjee, and myself, daughter of that eminent artist, co-founder Artha Studio, Shakuntala Mukherjee. I can see a ma'am and I can see Simranjeet Kaur also, but Simranjeet Kaur ma'am, you have not switched on your video, so I'm not able to see you, but I can see one more ma'am. Ma'am, can you yeah, Garima ma'am. Yeah, it's Garima ma'am. Hello Garima ma'am. So today we have come here, we are conducting the workshop on decoupage. Decoupage is basically a French technique, and nowadays it has become very popular also. So today that is why we have thought of taking this decoupage class, 3 days workshop. Now in one first day, today I'll just teach you how to prepare all the essentials of this decoupage. And then the second day, that is tomorrow. Tomorrow I'll just tell you that what are the basics of the decoupage, what things have been required for the decoupage, and how we can apply this technique. And on third day we'll do practical. We'll do this technique of decoupage. We'll apply this decoupage on various objects. So now, not taking much of your time, I would just like to tell about a little of Artha Studio. That Artha Studio is basically it's a vision of the artist. He always wanted that art should flourish, art should grow. So for that reason, he started this in 1990, and now I have again it has been started by me in 2018. So our main motto is to promote art, is to give you all the things out of the box. So that is why we have gathered here. We do all these things, or we take all these classes. So now today decoupage, all the essentials of the decoupage I would like to share with you. This is the gesso. This is the gesso. When you go to the market, you buy the gesso for 400 or 500 or even more than that sometimes. But this is a very essential and very required material for decoupage. Then we have got the Mod Podge. Mod Podge is this one. This is the Mod Podge glue or the decoupage glue, which we use to apply this technique on various objects. So now this glue, when we go to the market, we buy it for 400, or sometimes if a quantity is less, then it is of 200, 300, 150, like that. So but again, we cannot move ahead without this gesso. Now the third thing in it is the chalk colors. We require the chalk colors for making this thing. These are the basic chalk colors. These are the chalk colors. And these chalk colors are, again, they are going to be very expensive. Say 150 per bottle. Only this much quantity you are getting. So, and then the texture paste. Even if you go to the market, you buy the texture paste, that is also is very costly for you. Now for that reason, in this workshop, I am going to tell you that how can we make these things, these essentials at home at a very low cost. So let us start with gesso first, right? So for gesso, what we need a container. This is a container. We need a container for this. And then what we need spoon. Now for spoon, you can take plastic spoon, you can take steel spoon.
spoon also, teaspoon also. But you have to be very, very careful that while putting the things into the container, you should use the same teaspoon. If you are using this teaspoon to pour Fevicol, then you have to use this teaspoon only for pouring the other things which are required for making the gesso. Now, third thing for making the gesso is we require either this is a plaster of Paris. You get easily in the hardware shops. It hardly costs 20 to 25 rupees for the packet. For a kg of the packet, you hardly spend 20 to 25 rupees for this. This is a POP, this is a plaster of Paris. And then either if you do not have plaster of Paris and you are having baby powder at home, this is Johnson's baby powder I am using. If you are having baby powder at home, you can even use this baby powder also, which is present at your home, right? So this will cost you nothing. Okay. So then, Ma'am, can I? yeah, ma'am. Yes, what are you saying, ma'am? Ma'am, can we use a gypsum plaster? Actually, I don't have POP at home, so I have gypsum plaster. So Yeah, ma'am. You can use even gypsum powder. You can use white putty if you have white putty. Sometimes you go through the construction work of your house and the white putty is है ना रह जाती है कई बार घर में. So you can even use the white putty also, right? So all these things you can use for making this thing. And then we need glue, white glue, that is Fevicol. Fevicol is the best, right? So that is again, if you buy a big bottle, it will cost you 150 or 140 rupees like that, but you can make a huge quantity of with this, right? So you can even take a very small bottle for making decoupage, for making this decoupage gesso, you can use even a small bottle for that. So then these are the basic things which we require, and these are the gloves. If you really want, you can even wear these gloves so that your hands you are not being spoiled. And the main foremost thing is the water. You need this water also. This water is very essential. You keep this water in a container. I have kept it in a big container. You can keep it even in the small container also. So this is the water. Water is also a very basic thing for that. And any container. I have used the plastic disposable glass. You can use even plastic bottles you can use to keep the thing. अगर आप थोड़ा ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हैं तो you can even keep it also. So let us start now. For making, the proportion is equal proportions. Equally you have to take. That is, if you are taking 3 spoons of plaster of Paris or 3 spoons of powder or 3 spoons of gypsum plaster, which ma'am already asked, ma'am has already having. So if or the white putty, then you have to use 3 spoons of this glue. Same, 3 spoons of this glue, right? And any color, white color. Basically we use white color for this gesso. Sometimes even people make with black gesso also. So you can use the black color also, right? So these color, it is also, that will also be same proportion. So the proportion is 3:3:3 or 2:2:2 or 4:4:4, right? Like that. Whatever quantity you are needing, जितनी ज़्यादा quantity आपको चाहिए, अगर आप उतना ज़्यादा use कर रहे हैं plaster of Paris को, तो उतने ही चम्मच आप glue use करेंगे, उतने ही चम्मच आप color को भी use करेंगे. 3 of glue, 3 of plaster of Paris and 3 spoons of color. Now let us make it. I am using plaster of Paris here. So I have taken this spoon. This plastic spoon I have taken, and now I am applying it. Just level it. ठीक है? 1 spoon. Then it is 2 spoon.
then it is 3 spoon. 3 spoons of plaster of Paris we have taken, and now we are closing this jar. This is the main basic thing also to remember while doing all these art and craft activities, that whatever thing you are using, place it, keep it at the place and then use the second thing. अदरवाइज सारा क्या होता है, पूरा बिल्कुल वो बन जाता है, जमघट सा बन जाता है, जम्बल अप हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं. So this is the proportion we have taken, right? This is the thing we have taken this. Now we will use this glue, white glue, Fevicol MR, right? For this again we will use the same spoon. That's what I told you, the same spoon we are using. For that again, I'm just keeping it here because it is really disturbing me. Now I'm taking 3 spoons of it. Three spoons of it we have take a little. Actually it was not open, so I'm just opening it right now. Okay, so now 1 spoon. Oh, we'll just shake it. This is also another thing. Whatever you are using for art and craft activities, you always shake it. Everything. Maybe it is a glue, maybe it is a color, maybe it's some gel medium, yeah, maybe it's some texture paste. So always shake it well, because what happens, you know, the things get settled down and the upper part, the water comes out. So this becomes then very difficult. So now we have shaken it. Now the main thing has come out. So like this. Are you able to see, ma'am? This is the proportion. Now we are keeping it. 1 spoon. 1 spoon of it. 2 spoons of it. And 3 spoons. Right? Again close it properly. Keep it. Don't hush up. ठीक है? Now इसको अच्छे से आपने वो करना है. Don't panic about this thing कि कलर देना है, कब हम इसमें कलर देंगे, कलर डालेंगे, इसके लिए आप पैनिक मत कीजिए. आप सिर्फ इसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाते जाइए. इसको आप अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए. मेक इट अ प्रॉपर पेस्ट. अच्छी तरह से इसको वो कर लीजिए. आप इसको करने के लिए किसी स्टील की उसको भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपको स्टील का स्पून भी आप ले सकते हैं. स्टील के स्पून से भी आप इसको कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस स्पून से किया है उसी स्पून को लेना है आपने. ठीक है, इसको आपने पूरा अच्छी तरह से इसको वो कर लेना है. लाइक दिस. ये बन गया आपका लाइक दिस. ठीक है, कोई आया है लाइक दिस. ठीक है जी, कौन है नाम? ये आया है आसमा बेगम मैम, वेलकम. I think you have missed a little. No problem. I'll just let you tell afterwards also. So this is the main paste of white glue and plaster of Paris. You can use the powder, baby powder, and mind it that use baby powder only. Why to use baby powder? That also I'll let you know. Because baby powder is very smooth to touch. Other powders में थोड़ा सा खुरदरापन होता है, बट द बेबी पाउडर इज वेरी स्मूथ टू टच. अब ये जितना स्मूथ होगा उतनी ज्यादा जो है उसको हम घोल पाएंगे. ठीक है, एक स्टील की वो ला देना बेटा, स्टील का चम्मच या समथिंग.
तो इसको हम अच्छे से फिर घोल पाएंगे, ठीक है। सो ये बन गया हमारा, राइट। अब हम इसमें डालेंगे द कलर। अब हमारे को बनाना है व्हाइट जेसो। फॉर मेकिंग व्हाइट जेसो मैंने व्हाइट कलर लिया है, व्हाइट फेविक्रिल कलर लिया है। आप कोई भी एक्रेलिक कलर ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी एक्रेलिक कलर फॉर दैट मैटर, पर फेविक्रिल का लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फेविक्रिल जो है दैट इज वेरी अच्छा, उस ऑथेंटिक वो रहता है, उसका जो सब कुछ ठीक रहता है। कैमलिन का भी आप ले सकते हो। सो ये हमारा व्हाइट कलर है। अब इसको भी आपने शेक कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया है। एवरीथिंग यू हैव टू शेक, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू शेक, राइट, बिकॉज वो नीचे जो बैठ जाता है वो पूरा एकसार हो जाता है, पूरा जो है वो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अगेन प्रोपोर्शन हमने सेम रखना है, क्योंकि हमने 3 स्पून यूज किया था, तो आपने यहाँ पर 3 स्पून ही यूज करना है, और सेम स्पून रखना है, सेम स्पून रखना है। जिस स्पून से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्लू मिक्स किया है, उसी स्पून से हम कलर को भी मिक्स करेंगे। नाउ वी आर मिक्सिंग द कलर अगेन, 1 2 and 3। Now we have mixed this color. Now इसको हम अब मिक्स कर रहे हैं, we're mixing it properly. Now we are mixing it properly, right? अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। Mix it properly, mix it well, mix it well। ये देखिए आपको ये कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इस तरह से। अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको लाइट करना चाहते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें लिटिल पानी डाल सकते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैन से, ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैन पुट। मैंने इसमें सिर्फ ये वाला चम्मच लेके टीस्पून से मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने इसमें पानी डाला है, और इसको अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है, अच्छी तरह से हमने इसको वो कर लिया है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से घोल लिया है, you can see now my white gesso is ready, my white gesso is ready। you can keep it in a container। आप इसको ज्यादा सा लेके इसको आप एक कंटेनर, आप प्लास्टिक के कंटेनर में भी इसको बना सकते हैं, उसके बाद इसको आप बंद करके रख दीजिए। नाउ आई शो यू कि इसको हमने अप्लाई भी कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको अप्लाई। Again you can put a little water, again you can put a little water, थोड़ा सा पानी हमने और मिक्स कर दिया इसमें। पानी मिक्स करने से इसकी कंसिस्टेंसी, ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। Now our white gesso is ready। ठीक है। अब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर, आप अगर जो जिसके ऊपर भी आप करना चाहें, छोटे से किसी भी चीज के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनीथिंग। Like there is one poster. Yeah. What are you saying, ma'am? Pardon? My video is okay. 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 I'll just adjust it. I'll just adjust it. Right. So now you can take any material for that matter. This I'll show you. Day after tomorrow we'll be having the technique, so I'll show you the technique. But today also I'm showing you this is a coaster. This is a MDF coaster. So I'll just I'll just show you that how we can apply this homemade gesso on it, right?
you can use even the dabber for that. Yeah, we can use a small dabber, or you can use a brush. थोड़ा सा इसको डैब कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. और ये देखिए, we are applying this white gesso onto it. ये देखिए, this is the white gesso. अब जो आपको, आप मार्केट से जिस चीज को आप 500-400 में खरीद रहे हैं, वही चीज आपके घर में हार्डली 50 रुपीज या 60 रुपीज के बीच में आपकी बन गई है. कुछ भी आपको वो नहीं करना. आपने जो एक एक्रेलिक कलर खरीदा है, दैट कॉस्ट यू हार्डली 25 रुपीज. 20 रुपए का आपने पूरा 1 kg का ही आपने वो खरीद लिया है. प्लास्टर ऑफ पेरिस वो आपके बहुत दिनों तक काम आने वाला है, तो उसको अगर वो एवरेज लगाए तो हमारा 5 रुपए भी नहीं बनते हैं, है ना. और इवन और टेल्कम पाउडर कई बार घर में होता है, राइट. एंड द फेविकॉल ऑल्सो, फेविकॉल का छोटा जो है वो 10 रुपीज का मिल जाता है. वो 10 रुपीज इज इनफ फॉर इट. और अगर आप 10 रुपीज करने का थोड़ा ज्यादा बनाना चाहते हैं 20 रुपीज का, तो कितना हुआ आपका 20 एंड 20 करके कॉस्ट कीजिए तो हार्डली 60 रुपीज. उतना भी नहीं बना एंड योर दिस थिंग इज रेडी. ठीक है, योर जेसो इज रेडी. आपने इसको पूरे में अप्लाई कर दिया. यू आर अप्लाइंग इट, यू आर पुटिंग दिस कोट ऑन इट. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो फॉर योर फर्दर दिस थिंग. आपके बाद के उसके लिए आप इसको लिख के भी रख सकते हैं. ठीक है ना. तो ये आपका हमारा हो गया. दिस जेसो वी हैव अप्लाइड. इसको आप रख देंगे फॉर सम टाइम. उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरी कोट जो है उसको अप्लाई कर लेंगे. उसके बाद इसके ऊपर आप दूसरी कोट अप्लाई कर लेंगे. ठीक है. सो ये मैं आपको परसों सिखाऊंगी ये वाले टेक्निक कैसे हैं. ये सिर्फ मैंने आपको बताया. सो दिस वाज हाउ वी हैव मेड दिस जेसो. तो मैं एक बार दोबारा से जेसो को रिपीट कर देती हूँ. व्हाट वी हैव डन, we have taken either plaster of Paris, you can take either plaster of Paris or talcum powder or gypsum mixture, or you can take white putty. Along with that, we have taken this white glue, Fevicol, and along with that we have taken acrylic color. Because we have made a white gesso, this is the gesso basically. Because we have made the white gesso, that is why we have used the white color. We have used the white color. White color kahan pe? Yeah. So we have used this white color. Even if you can make gesso of any colors. आप अपने मन से कोई भी कलर, आप अपने बैकग्राउंड को नॉट नेसेसरीली कि आपको व्हाइट ही देना है. आप अपने इस बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हैं. आप अपने इस बैकग्राउंड को रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं. कई कलर्स के जेसो बना सकते हैं. उसके लिए आपको एक्रेलिक कलर वही यूज करना है. अगर आप ग्रीन जेसो बनाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर यूज कीजिए. येलो जेसो बनाना चाहते हैं तो येलो कलर यूज कीजिए. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इच्छा से आप कौन सा कलर बनाना चाहते हैं. विच एवर कलर यू वांट टू मेक, यू कैन यूज दैट कलर फॉर मेकिंग द जेसो, राइट. सो हमारा ये देखिए बिल्कुल 50 रुपए के बीच में हमारा इतना सारा तैयार हो गया, जो कि हमारे को इवन वी कैन, इसको हम कितने दिन तक इसको हम चला सकते हैं. हमने बचा लिए हमारे पैसे, राइट. वी कैन यूज दैट. उसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, उस मनी को. इवन वी कैन कीप दैट मनी असाइड, है ना, फॉर आवर बात के लिए. कभी भी कुछ अच्छा सा कुछ एक साथ करके बना लेंगे. मैं ज्यादातर ऐसे ही करती हूँ, इस तरह के अटेम्प्ट्स लेती रहती हूँ. तो ये हो गया हमारा जैसे. और इसके लिए मैंने आपको जो बताया था प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए. 3:3:3, 4:4:4, 5:5. आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना ही आपको इक्वल लेना है. इक्वल अमाउंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाइट ग्लू, इक्वल अमाउंट ऑफ एक्रेलिक कलर. एंड जब आप देखोगे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, लाइक इस टीस्पून के ½ टीस्पून ऑफ वाटर आप उसमें डाल सकते हैं. ना डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपका जेसो जो है वो इजीली अच्छे से तैयार हो जाएगा. सो इट इज नॉट नेसेसरीली कि यू हैव टू यूज इट ओनली. आप
किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गया हमारा जेसो। अब हम आते हैं, लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ हाउ टू मेक द डेकोपाच। वो भी मैंने आपको अभी दिखाया था, आई थिंक आई शुड, या दिस इज द मॉड पॉच ग्लू, जो आपको मार्केट में काफी कॉस्टली अवेलेबल होता है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 400, 500, 200, 150, उससे कम में नहीं आता है। सो इस मॉड पॉच ग्लू को भी आप घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, व्हाट वी नीड फॉर दिस, वी नीड अगेन सेम थिंग, हमें चाहिए इसके लिए दिस फेविकॉल MR, यही चाहिए हमारे को, दिस फेविकॉल MR, दिस व्हाइट ग्लू वी नीड, एंड वी नीड वाटर, वाटर को तो आप इसी कंटेनर में डाल के रख ही लीजिए अपने साथ, कि हर चीज में वाटर की आपको जरूरत होगी। सो वी नीड वाटर फॉर दैट, और इसके लिए हमारे को प्रोपोर्शन है 2:1, 2:1। अगर आप 2 स्पून आप ग्लू के यूज कर रहे हैं तो आपको 1 स्पून वाटर का यूज करना है। अगर आप 4 स्पून्स ग्लू के यूज कर रहे हैं तो आपको 2 स्पून्स ऑफ वाटर यूज करना है। If you are using 6 spoons, then you have to use 3 spoons, half the proportion, 2:1 की रेशियो में ये चलता है, राइट। तो इसके लिए भी आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए। मैंने इसलिए लिया है, मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लिए हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू सी ऑल्सो कि किस तरह से वो बन रहा है। आप किसी भी इवन आप डायरेक्टली किसी कंटेनर के बीच में भी आप कर सकते हैं। प्लास्टिक की कंटेनर्स या स्टील की छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, आप उसके बीच में एज इट इज भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस ग्लू को एज इट इज भी बनाकर रख लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्टील की डिब्बी है, उस स्टील की डिब्बी के अंदर भी इसके प्लास्टिक की डिब्बी है, इसके अंदर भी मैं इसको बनाकर रख सकती हूँ। या फिर ऑलरेडी दो वो हुए हैं, एक में मैं वो रख दूंगी जेसो और एक में मैं मॉड पॉच रख दूंगी, तो अपने आप मेरे को लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उसमें स्लिप डालकर रख सकते हैं, एक स्लिप बनाइए और उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए कि मॉड पॉच और ग्लू है, आपका हैंडी होगा, आपके हाथों के सामने रहेगी वो चीज़। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके अपने आप से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग दिस जार, एंड मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि स्पून आपने वही यूज करना है। जिस स्पून को आपने अगर ग्लू लेने के लिए जिस स्पून को यूज किया है, उसी स्पून को आपने वाटर लेने के लिए भी यूज करना है, राइट। सो नाउ वी are making the mod podge. We are taking 2 spoons of glue. Two spoons of glue we are taking. आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर कि हमारे उसमें रह जाता है, टाइम इज रनिंग शॉर्ट, समय खत्म हो रहा है, सर को बुलाना बेटे, समय खत्म हो रहा है मैम, आप उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर जाइएगा, आप उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर जाइएगा, तो आप कोई कुछ भी मिस नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज अबाउट टू, इट इज रनिंग, 10 मिनट्स रह गए हैं, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। सो ये हो गया है, इसके हमने 2 स्पून लगा दिए हैं, इसके हमने 2 स्पून कर लिए हैं, ठीक है। नाउ 1 स्पून, सर इसको इसी लिंक से जोड़ेंगे बाद में 10 मिनट बाद, ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, राइट। तो ये हमने ले लिया। अब हम लेंगे 1 स्पून ऑफ वाटर, विल टेक 1 स्पून ऑफ वाटर। तो मैंने इसमें से स्पून में से ले लिया है, ये मैं ले रही हूँ, ये मैंने 1 स्पून लिया है, सिर्फ 1 स्पून ऑफ वाटर लिया है मैंने। और आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए कि यहाँ पे लगा रह गया है ग्लू, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे, जब आप इसको वो कर रहे हैं, इसको हिला रहे हैं, इसको आप हिला रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली जो लगा हुआ पोर्शन है वो भी आपका इसके अंदर चला जाता है। और यू कैन इवन इसको आप हाथ से अपनी उंगली के साथ इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। हटाकर आपका ये बन गया है, योर मॉड पॉच इज रेडी, योर मॉड पॉच इज रेडी। ये है आपकी कंसिस्टेंसी, ऐसी होगी, दिस इज द कंसिस्टेंसी, ये इस कंसिस्टेंसी होगी आपकी, दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी, ये आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो ये आपका हो गया है, दिस इज द मॉड पॉच। सो वी हैव मेड द जेसो
वी हैव मेड द मॉड पॉच। ये दोनों चीजें हम बना चुके हैं और एट ए वेरी लो कॉस्ट, ठीक है ना। अभी तक हमारे 100 रुपीज भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दो चीजें बना ली जो कि मार्केट से हम ऑलमोस्ट इफ नॉट मोर हम 1000 रुपीज में ये दो चीजें खरीदते, और यहाँ हमारा अभी 100 रुपीज भी नहीं हुए हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेकोपाच इज द कलर। दिस इज द चॉक कलर। अब आप इस चॉक कलर को भी यू कैन मेक दिस चॉक कलर एट होम। चॉक कलर भी आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो इट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 150, एक छोटा सा, इतना ज्यादा वो नहीं होता। तो इसके लिए इसको हम या चॉक डेकोपाच कलर्स भी हम इसको कह सकते हैं। इसके लिए भी अगेन आप एनी कलर, कोई भी कलर आपके पास, आप जैसे मैंने ये पिंक कलर चूज किया है, यू कैन यूज एनी कलर। सभी कलर्स का भी आप बनाकर रख सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स में सारे कलर्स बनाकर रख दीजिए, आपके खराब नहीं होंगे। बिल्कुल आप बंद करके, अगर जैसे मैंने आपको बताया है, काम करने के बाद साथ के साथ अगर आप उन चीज़ों को बंद कर देते हैं तो आपका कुछ भी जो है वो खराब नहीं होता है, खराब होने वाला कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए भी हमारे को चाहिए, एक सेकेंड, या फॉर दिस ऑल्सो हमारे को चाहिए 1 स्पून ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लेंगे, इसमें हमने 1:2 का रेशियो रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 स्पून और कलर के 2 स्पून अलोंग विथ लिटिल वाटर, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये हमने ले लिया 1 स्पून प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 स्पून हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ले लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हम ले रहे हैं दिस पिंक कलर, वी आर मेकिंग पिंक चॉक कलर। इसको हमने अच्छी तरह से शेक कर लिया है, वी आर शेकिंग इट प्रॉपरली। अब हमने 2 डालने हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शन जो था वो जैसे ग्लू का ज्यादा, पानी का कम, जैसों में हमने तीनों का प्रोपोर्शन सेम रखा था। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोपोर्शन कम होगा और कलर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। अब ये हमारा आ गया, इसमें हमने 2 स्पून ऑफ कलर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसको प्रॉपरली पूरी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। इसको बंद कर दीजिए। हमने इसको प्रॉपरली पूरी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, पूरी तरह से मिक्स कर दिया है एंड योर चॉक कलर इज रेडी। ये देखिए अब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज्यादा है और आपने इसको पूरी तरह से आपने इसको वो करना है कि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। आपने कभी भी इस बात के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि हो नहीं रहा, अरे ये तो हो नहीं रहा, कैसे करूं, क्या करूं, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। आपने ये देखना है कि लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। पूरा इस तरह से करना है आपको। अब आपको कंसिस्टेंसी अगर आपको लग रही है कि ज्यादा है, ब्रश में करने से मुश्किल होगी, तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर यू कैन ऑलवेज ऐड लिटिल वाटर। बहुत ज्यादा पानी मिक्स मत कीजिए, लिटिल वाटर यू कैन ऐड। आप इसको थोड़ा सा पानी यूज कीजिए और ये देखिए ये आपकी कंसिस्टेंसी आ गई है, राइट। सो दिस इज द चॉक कलर। तो आप इसी तरह से हर कलर से बना सकते हैं। वी हैव गॉट ग्रीन, आप एक एक्रेलिक कलर्स कुछ भी लेके आइए, ग्रीन ला सकते हैं। यू ब्रिंग दिस पीच कलर, ऑरेंज कलर से बनाइए। देन यू हैव ब्लू कलर से बनाइए। सो डिफरेंट कलर्स, आप किसी भी कलर से आप चॉक कलर को बना सकते हैं। कैसे? 1 टीस्पून और वही स्पून, जिस स्पून से आपने यूज किया है उसी स्पून से आपने कलर यूज करना है। 1 स्पून ऑफ plaster of Paris if you are using, with the same spoon, 2 spoons you will use the color. That means 1:2. The ratio is 1:2. Mod Podge का रेशियो क्या था? 2:1. 2 स्पून आपने ये गम लेना है और 1 स्पून आपने वाटर लेना है। और इसका क्या था? 2:1. और इसका क्या हुआ? 1:2. 1 आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिया है और
2 आपने कलर का लिया है। सो ये तो हो गया हमारा चॉक कलर, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग एक और चीज सीखेंगे आज, टेक्सचर पेस्ट। अब टेक्सचर पेस्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, फॉर टू मेकिंग द टेक्सचर पेस्ट व्हाट वी हैव टू डू, अगेन सेम हमारा वही चलेगा, सेम उसमें हमारा चलेगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अगेन मटेरियल हमारा रहेगा, या तो रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस या रहेगा ये पाउडर, बेबी पाउडर, ठीक है, और उसके साथ रहेगा ग्लू, ठीक है, उसके साथ रहेगा ग्लू। इसका भी रेशियो 2:2 रहेगा और ये काफी थिक बनेगा, ये काफी थिक बनेगा। ये किसी भी स्टेंसिल वगैरह, आप किसी भी चीज के ऊपर आप पेस्ट, टेक्सचर पेस्ट बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हमारे आर्ट टीचर ने बड़ा अच्छा बनाया है, हमारे कुलदीप मैम है, उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। एक मैम आप अपना वो लेके आइए, जरा दिखाइए, मैं दिखाती हूँ जरा, ब्लैक वाला जिससे टेक्सचर पेस्ट से जो किया हुआ है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो ये अगेन आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया हमने, दो स्पून ले लिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ठीक है, और हमने इसमें ले लिया है 2 स्पून ही हमने लिया है गम का, ठीक है। गम का भी कोई आया है मैम, सर गम का भी हमने 2 ही पेस्ट लेने हैं गम के, कर दीजिए, इसके भी हमने 2 ही लिए हैं, ठीक है। हेलो अर्शिया, अर्शिया बेटा यू आर लिटिल लेट, बेटा है या मैम है मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू आर लिटिल लेट, अब तो खत्म होने वाला है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं वैसे भी कल दोबारा जो क्लास लूंगी उसमें मैं आपको बता भी दूंगी। दिस इज मैम, यस मैम। सो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये ऐसी रहेगी, क्यों ऐसी रहेगी, ये देखिए, ये बनाया हुआ है हमने इस टेक्सचर पेस्ट के साथ, टेक्सचर पेस्ट के साथ इसको आप किसी भी चीज के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकेंगे, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। ये काफी थिक कंसिस्टेंसी में होता है, ठीक है। इसको आपने रखना है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको आप पानी से आप इसको वो कर सकते हैं, लिटिल वाटर आप इसमें डाल सकते हैं, डालकर इसको थोड़ा सा आप इसे अपनी इसकी उसके तक ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक रहेगी टेक्सचर पेस्ट की, राइट। सो इसके साथ हम क्या करते हैं, स्टेंसिल लगाकर, हम किसी भी चीज के ऊपर स्टेंसिल लगाकर उसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट लगाकर स्टेंसिल को हटा देंगे, फिर वो पेस्ट सूख जाएगा, फिर उसके ऊपर पेंट कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो अनदर वे, दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग। सो आई होप you have enjoyed today's workshop. So in today's workshop we have learned about how to make a gesso, how to make Mod Podge, how to make chalk colors and how to make the texture paste. और ये सारी चीजें हमने मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में घर में बनाई है, जिनको आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको कम से कम 1000 to 2000 का हमारे को करना पड़ता है। We just spend 2000 or 1000 rupees for that. But here everything is being done. घर में हमने सब कुछ किया है and at a very low cost, at a very low cost हमारे को ये सारा कुछ मिल गया है and we can easily make and each and every color we can make and इनको आप छोटे छोटे शीशियों में रख दीजिए। परसों हम जो करेंगे, day after tomorrow, the workshop which I am going to take about the techniques, in which I am going to tell you about the techniques of this decoupage. In this technique we are going to use, welcome again ma'am, welcome again, so you can use this link and join. So now with this only in our next session we are going to do all these things with the technique which I have done, with the technique which I have done with the homemade things. We are going to do this, and in the tomorrow's session I am going to teach you, I am going to tell you about the basics of decoupage, what papers are to be used in decoupage, what brushes can be used for doing decoupage, and what is basically the decoupage technique is. Sir, admit कीजिए. What is basically the decoupage technique is. How can we do the decoupage technique?
So welcome ma'am, welcome once again. So Asma ma'am, so what I was telling that today we have done, today we have done the base, all the things, essentials of this decoupage, how to make it at home, जिसको हम मार्केट में खरीदते हैं बहुत कॉस्टली. यू कैन मेक इट इजीली एट होम. और परसों जो हमारा सेशन होगा, परसों के हमारे सेशन में हम बताएंगे आपको हाउ टू अप्लाई ऑल दिस. इन्हीं चीज़ों से बनाऊंगी मैं. And in tomorrow's session is also going to be very fruitful for all of you, because in tomorrow's session I am going to tell you about the basics of the decoupage, that what type of papers are being used in decoupage and what are the brushes which are being used in decoupage. Essentials तो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए decoupage के लिए, and what is the surface of the decoupage, what surface are used in decoupage, ये कल मैं आपको बताऊंगी. And last का जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में मैं आपको बताऊंगी that how we can apply these techniques, कैसे हम बनाएंगे. यहाँ आपके सामने मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी all these items. एक मैं आपको दिखा देती हूँ. We have made this plate. This is our decoupage plate. मेलामाइन की प्लेट है, खराब हो गई थी, घर में खराब हो जाती है. इसको हम लोगों ने डेकोपाज के साथ इसको हमने रिन्यू कर लिया है. करने के बाद इसको हम आराम से वॉल हैंगिंग, वॉल डेकोर बना सकते हैं. दीवार पर आप इसको इजीली टांग सकते हैं. यू कैन मेक अ वॉल डेकोर. और अगर आप अपने टेबल पे रखना चाहते हैं, टेबल पर रख के इसके ऊपर कुछ भी रख दीजिए. किसी को आपने डिनर पे बुलाया है, आप इसको टेबल पे रख दीजिए. यू कैन कीप द टिश्यू पेपर्स ओवर इट. आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर्स वगैरह रख सकती हैं. So all these things I will teach you, I will show you in my third workshop. So nice meeting you. It was really, I am so grateful to all of you, those who have attended and those who haven't attended. I am grateful to them also, because of your support, your care. Artha Studio is able to work properly. Artha Studio is able to walk a mile, right? So we will work together, and I promise you that Artha Studio will bring so many innovative and new things in front of you. And ma'am, all these workshops are free of cost. The only thing which we are asking you, your little time, your little presence, and the things which we teach you, if you send us, if you make the thing at home and you send us, then it becomes very we feel very good, we feel very proud that हमने जो सिखाया है सब उसको वो सिखा पा रहे हैं हम, वो चीज़ हमारी सब तक पहुंच पा रही है. And you will also get the e-certificates for that. So for now, today I am taking your leave with these words, and tomorrow again we'll meet 4:30 at the same time, and again we'll join with the second link like this, like today we have joined. So tomorrow we'll learn about the basics of the decoupage. Thank you and bye bye for today. Thanks a lot.